inaugurated, a suspended TMC MLA has made a controversial move. We're talking about Humayun Kabir, who laid foundation stone of a Babri-style masjid in West Bengal's Murshidabad district. Security has been beefed up in the entire area. Earlier today, his supporters gathered at the spot with bricks to lay the foundation stone. Now, this comes after police administration allowed the suspended MLA to peacefully conduct the event after the Calcutta High Court refused to intervene. Let's go across to my colleague Shivam, who is joining us live at this point in time. Shivam, how is the situation there right now? Well, now things have settled down. Around 2 hours back, Humayun Kabir went to the place, laid the foundation stone with the support of over 10,000 people that have come from, as he was claiming, that from all across the Bengal in Murshidabad, in that particular area. There was anticipation of a law and order situation that could go out of the hand. That's why the security, the officials were on their foot. All the Bengal police and other security officials were at each and every spot from where the crowd was coming in. So far, fortunately, there hasn't been any case of any mishappening, any kind of misinformation going on any derogatory remarks being made about any particular religion. He went there, right. He laid the foundation, and now he had appealed. Now his next statement is to make a political party. So for now, things have been settled down. All right. But yes, the politics around the Babri Masjid and now the politics of mobilizing the vote bank will take from now between TMC and Humayun Kabir. All right, Shivam, appreciate you joining us with your inputs on this story. Remember, viewers, the Trinamool Congress suspended Humayun Kabir, saying that he has crossed all the limits. Several clerics also criticized the move. All India Shia Personal Law Board called this a conspiracy to break the country and a cheap publicity stunt, hinting at some political motivation behind this. Another cleric, a member of All India Muslim Personal Law Board, said that such issues are sensitive and should not be raised at a political level. Listen in. हम लोगों का यही मानना है कि मस्जिद को, किसी भी मस्जिद को इस तरीके से पॉलिटिसाइज या पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए। और जिसको भी कोई भी मस्जिद बनानी है तो जाहिर सी बात है, वहाँ का जो कानून होता है उस कानून में परमिशन के बाद कोई भी अपनी इबादतगाह बना सकता है। लेकिन इस तरीके से बाबरी मस्जिद जैसे अहम और सेंसिटिव इश्यू को इतना पॉलिटिकल लेवल पर उसको रेस करना कतई तौर भी मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस तरीके का बयान फिर से मुल्क को तोड़ने की एक साजिश है और इनके पीछे कोई सियासी लोग हैं जो अपने इनको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद के नाम पर बहुत झगड़ा हो चुका है, माओ की गोदियां उजल चुकी हैं, औरतों के सुहाग लुट चुके हैं। लिहाजा मस्जिद का नाम अगर रखना ही है तो अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर, इमामों के अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर रखें, न कि बाबर, अकबर, औरंगजेब जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और नुकसान पहुंचाया है। देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर उनकी चीप पब्लिसिटी होगी और लोग उनको जानेंगे। आज सवाल आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद नाम रखा है। BJP has slammed TMC, calling this a matter of national security which couldn't be taken lightly. Congress party, on the other hand, has shifted the blame onto the BJP, calling Humayun Kabir a BJP agent. मैं पूछना चाहता हूं, ये मिली भगत नहीं तो और क्या है? हुमायूं कबीर का ये बयान 2 सप्ताह पुराना है। वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने? क्योंकि हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है। और ममता बनर्जी ये जानती हैं जो आगामी चुनाव है वो ममता बनर्जी हार चुकी है। उनको अगर सहारा किसी का है तो वो घुसपैठियों का है, उनको सहारा है तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति का है। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। देश की संस्कृति को तबाह करने का कंसेप्ट लेकर जो बाबर भारत में आया था, जिसके अत्याचार पर प्रथम गुरु नानक साहब ने बाबर जाबर कहा, इति मार पई कुरलाने ते की दर्द ना आया। वो बाबर जिसने गंगा, यमुना, सरयू
हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। टीएमसी की या ममता जी की दिक्कत क्या है? वो कहती हैं चोर उससे कहती हैं चोरी करो और पब्लिक से कहती हैं जागते रहो। अब उनका जो उन्हीं की पार्टी का जो विधायक है या जो पार्टी का नेता है, वो लगातार जो अराजकता, उद्दंडता, सांप्रदायिक अराजकता और उद्दंडता को फैलाने के लिए जो काम करने में लगा हुआ है, आप जो है वो खाना पूर्ति करके जो है कहेंगे कि हमने उसे निकाल दिया, उससे हमें हटा दिया। ये तो स्थिति वो है, चोर से कह रहे हैं कि चोरी करो और लोगों से कह रहे हैं जागते रहो। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो। वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। ये देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है। अगर इतना ही बड़ा मुसलमान थे तो भाजपा से 19 में चुनाव क्यों लड़े थे तुम? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी? Meanwhile, viewers, security has been beefed up in Ayodhya as well to prevent any untoward incident. Take a look at this report. आज 6 दिसंबर है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस की ये तारीख है। इसके बाद से ही पूरे अयोध्या को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस जो है जगह जगह इस तरह से कॉम्बिंग कर रही है। आप देख सकते हैं ये रामपथ पर है और पुलिस की बड़ी संख्या में जो सवार हैं वो यहाँ पे पैदल मार्च कर रहे हैं। हर तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। रामपथ है ये, और रामपथ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो भी गश्त कर रही है, और मकसद यही है कि अयोध्या में कोई अप्रिय घटना ना हो। चूंकि 6 दिसंबर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 3 शहरों खासकर अयोध्या, काशी और मथुरा में अलर्ट पर है, और इसीलिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो है वो इस रामपथ पर गश्त कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिप्लाई किया गया है। कहा जा रहा है कि 3 लेयर सिक्योरिटी की अरेंजमेंट जो है वो अयोध्या में किए गए हैं, और इसका मकसद यही है कि अयोध्या में शांति बनी रहे। करीब 11 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या में आए थे। उस वक्त भी सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता की गई थी। एक बार फिर जो है अयोध्या में जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जो अयोध्या के अंदर एंट्री गेट्स हैं वहां पर भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही जो मेन सड़क है, जो रामपथ है, वहां पर बड़ी संख्या में फोर्सेस जो है वो इस देख सकते हैं कि फ्लैग मार्च कर रहे हैं। Let's now move on, viewers, and shift our focus to the latest coming in from Karnataka. Ms.